Welcome students for the video lecture of subject Water Resources Engineering. So today we will see topic 3.4.1, that is gravity dams and forces acting on gravity dam and conditions of stability. So myself Rushali Mane, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Then vision of the institute: excellence in technical education to empower youth. Then mission: impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizens. Then strengthen industry institute interaction. Then vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Then mission: imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Then effective implementation of teaching learning process to benefit students. Then course outcome: so in this unit will study how to maintain the irrigation structures, means how to maintain the dams. Then unit outcome: draw a level sketch of given type of dam. Then program outcomes mapped here are basic and discipline knowledge, then problem analysis, then engineering tools, experimentation and testing, engineering practices for society, sustainability and environment, then project management and lifelong learning. Then gravity dam. So what is gravity dam? So it is made from concrete or stone masonry and designed to hold back water by using only the weight of the material and its resistance against the foundation to oppose the horizontal pressure of water pushing against it. So gravity dam की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है उसके ओन वेट पे. तो वो एक मेसनरी या कंक्रीट स्ट्रक्चर से बनाया हुआ होता है और फाउंडेशन उसका इतना स्ट्रांग होता है कि वो सेल्फ वेट से ही जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होता है वाटर का उसको रेजिस्ट कर सकता है. सो दैट इज ग्रेविटी डैम. So gravity dams are designed so that each section of dam is stable and independent of any other dam section. मतलब उसका एक एक पोर्शन जो होता है, एक एक सेक्शन जो होता है वो स्टेबल होता है एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑफ एनी अदर डैम सेक्शन. सो ये होता है ग्रेविटी डैम. देन टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम. सो हियर you can see the structure of gravity dam. All its components are given here, like freeboard, heel, toe, galleries, sluiceway, then maximum pool level, high flood level, freeboard, then crest. All these components are given here. Then we will see one by one. So what is mean by heel? Contact, it has contact with the ground on the upstream side. So heel is the contact structure which is having contact with the ground on the upstream side. Then toe जो है हिल का ऑपोजिट साइड है, डाउनस्ट्रीम साइड में होता है. कॉन्टैक्ट ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड मतलब ग्राउंड से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज टो. हील और टो एक दूसरे के ऑपोजिट पेयर होते हैं. देन अबटमेंट: साइड्स ऑफ द वैली ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ द डैम रेस्ट. तो जो साइड के जो सपोर्ट होते हैं, मेन सपोर्ट्स, उनको अबटमेंट बोला जाता है. देन गैलरीज: स्मॉल रूम्स लाइक स्ट्रक्चर लेफ्ट विद इन द डैम फॉर चेकिंग ऑपरेशंस. तो गैलरीज जो है उसके अंदर पैसेज होता है, मतलब मैन कैन एंटर इनसाइड इट फॉर इंस्पेक्शन पर्पस. इट इज़ प्रोवाइडेड इन द डैम फॉर इंस्पेक्शन पर्पस. देन डाइवर्जन टनल: टनल्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर डाइवर्टिंग वाटर बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. दिस हेल्प्स इन कीपिंग द रिवर बेड ड्राई. तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो है डाइवर्टिंग टनल मतलब वाटर को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है. देन स्पिलवेज: इट इज़ द अरेंजमेंट नियर द टॉप टू रिलीज द एक्सेस वाटर ऑफ द रिजर्वायर टू डाउनस्ट्रीम साइड. तो स्पिलवे एक स्ट्रक्चर होता है विद इन द डैम सेक्शन ओनली, जिससे वाटर जो है वो डाउनस्ट्रीम साइड में पास किया जा सकता है. देन स्लुइस वे: an opening in the dam near the ground level
which is used to clear the silt accumulation in the reservoir side. So we have already seen in silt accumulation, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर्स में हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि ये स्लूइस वे के थ्रू सिल्ट को क्लियर किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस स्लूइस वे. देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम. तो ये फोर्सेस होते हैं ग्रेविटी डैम पे एक्ट करने वाले, जैसे वेव प्रेशर, वाटर प्रेशर, वेट ऑफ डैम, टेल वाटर, अपलिफ्ट प्रेशर, देन प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक. ये सारे अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो है वो ग्रेविटी डैम पे एक्ट होते हैं. देन इन द डिज़ाइन ऑफ अ डैम द फर्स्ट स्टेप इज टू डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस फोर्सेस विच एक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड स्टडी देयर नेचर. तो स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से फोर्सेस डैम पे एक्ट करते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या रहेगा स्ट्रक्चर पे और उनका नेचर क्या रहेगा. वो डैम को ओवरटर्न कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं. तो ये सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए हमको ये फोर्सेस पहले पता होना ज़रूरी है और फिर हम उस तरह से हमारा डैम डिज़ाइन करेंगे. देन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन द डैम इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग फोर्सेस. फर्स्ट इज वाटर प्रेशर जो रिजर्वायर में रहेगा, देन वेट ऑफ वेज ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, देन वेट ऑफ डैम, देन अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर, देन सिस्मिक फोर्स, देन अपलिफ्ट फोर्स, देन आइस प्रेशर, विंड प्रेशर. तो ये सारे जो फोर्सेस है ये डैम पे एक्ट करते हैं. तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम. तो ये स्ट्रक्चर में आपको सारे ही टाइप के फोर्सेस नज़र आएंगे, जैसे कि अपलिफ्ट प्रेशर है बॉटम में दिख रहा है, देन ऊपर वेव प्रेशर है, फिर वाटर प्रेशर डायग्राम बनी है, देन सिल्ट प्रेशर डायग्राम बनी है, हाइड्रोडायनामिक प्रेशर डायग्राम है. तो बॉडी ऑफ द डैम डाउन स्ट्रीम साइड अपस्ट्रीम साइड में टेल वाटर प्रेशर डायग्राम है. तो ये सारे प्रेशर्स जो डैम पे एक्ट करते हैं वो ये स्केच में दिख रहा है. देन हम एक एक करके फोर्सेस एक्टिंग ऑन ग्रेविटी डैम देखेंगे. पहला है वाटर प्रेशर. सो वाटर प्रेशर ऑन द अपस्ट्रीम साइड इज द मेन स्टेबिलाइजिंग फोर्स इन द ग्रेविटी डैम. तो वाटर क्योंकि रिजर्वायर में फुल वाटर भरा होता है तो वो वाटर प्रेशर जो है वो अपस्ट्रीम साइड में डैम के प्रेशर एक्सर्ट करेगा और डैम को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है. सो डाउन स्ट्रीम साइड में ऑल्सो हैव वाटर प्रेशर बट हैज़ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, सो नॉट कंसिडर्ड इन स्टेबिलिटी एनालिसिस. डाउन स्ट्रीम साइड में भी पानी होता है पर वो उसका मैग्नीट्यूड कम होता है, इसलिए वो कंसिडर्ड नहीं किया जाता है स्टेबिलिटी कंडीशन में. देन वाटर प्रेशर इज द मोस्ट मेजर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम. तो वाटर प्रेशर जो है वो मेजर फोर्स है. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज PWH इज इक्वल टू WH स्क्वायर बाय 2 एक्टिंग एट h/3 फ्रॉम द बेस. तो वाटर प्रेशर जो है इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला WH स्क्वायर बाय 2. वो एक्ट करता है एट अ हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस. सो W क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, H इज हाइट ऑफ वाटर. देन नेक्स्ट है वेट ऑफ वेज ऑन डाउनस्ट्रीम स्लोप एंड अपस्ट्रीम स्लोप. वेट ऑफ वेज मतलब डैम का अपना वेट जो है उसके वजह से जो फोर्स आ रहा है. देन वेट ऑफ वाटर ऑन डाउनस्ट्रीम वेज एक्टिंग एट CG डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स, रिटेनिंग फोर्स. सो it is given by PWH dash is equal to WH dash square by 2 due to tail water. तो टेल वाटर का जो हाइट है उसको H डैश बोला जाता है. तो जो डाउनस्ट्रीम में वेज जो है फोर्स एक्ट होता है वेट ऑफ वाटर ऑन डाउनस्ट्रीम वेज, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला PWH dash is equal to WH dash square by 2 due to tail water. देन नेक्स्ट जो है वो अपस्ट्रीम स्लोप पे है. तो इट इज़ गिवन बाय PWV, वेट ऑफ वेज वाटर ऑन अपस्ट्रीम स्लोप एक्टिंग डाउनवर्ड्स थ्रू CG, दैट इज रिटेनिंग फोर्स. देन नेक्स्ट है सेल्फ वेट ऑफ डैम. सेल्फ वेट ऑफ ए ग्रेविटी डैम इज मेन स्टेबिलाइजिंग फोर्स विच काउंटर बैलेंसेस ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. तो डैम का जो सेल्फ वेट है वो सारे ही फोर्सेस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है. तो एक मेन स्टेबिलाइजिंग फोर्स होता है वेट ऑफ द डैम इटसेल्फ, वो सारे ही फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकता है.
Then for construction of gravity dams, the specific weight of concrete and stone masonry shouldn't be less than 2400 kg per meter cube and 2300 kg per meter cube respectively. तो स्पेसिफिक वेट ऑफ कंक्रीट और स्टोन मेसनरी जो है वो इतना ही होना चाहिए. देन सेल्फ वेट ऑफ ग्रेविटी डैम एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डैम. इट इज़ द कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला W is equal to area of cross section into unit weight of dam material acting at CG of the dam section downwards. Then next है upstream silt pressure. It is calculated by the following formula. So P silt is equal to WB H square S by 2 into 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. So acting at HS by 3 from the base of the dam. तो ये अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर जो है वो सिल्ट एक्यूमुलेशन जो होता है उसकी वजह से जो प्रेशर आता है दैट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर. देन वेयर WB इज इक्वल टू weight of submerged silt and phi is equal to angle of internal friction of silt. So HS is equal to depth of silt. Then seismic force. Primarily, secondary, relay and love waves are set up in the earth crust due to earthquakes. तो ये सारी जो waves है ये earth crust में develop हो जाती है due to earthquake. These waves impact acceleration to the foundation under the dam and cause its movement. In order to prevent cracking or rupture, the dam must also move along with the movements of the foundation. तो अर्थक्वेक के वक्त क्या होता है कि ये जो वेव्स है प्राइमरी सेकेंडरी रिले और लव वेव्स ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है एक्सीलरेशन इम्पैक्ट टू द फाउंडेशन अंडर द डैम. तो डैम को मूव करने की कोशिश करती है. तो डैम भी क्या होना चाहिए इन वेव्स के साथ मूव होना चाहिए ताकि क्रैकिंग और रप्चर प्रिवेंट किया जा सकते. क्रैकिंग या ओवरटर्निंग प्रिवेंट करने के लिए डैम भी इन वेव्स के साथ मूव होना चाहिए. तो ये हमको इस तरह की कंडीशन डेवलप या कंस्ट्रक्शन के वक्त ही करनी पड़ती है ताकि डैम ओवरटर्न या उसमें क्रैक्स ना आए. द एक्सेलरेशन जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक डेवलप्स इनर्शिया फोर्स इन द डैम ड्यू टू विच स्ट्रेसेस आर फर्स्ट इंड्यूस्ड इन लोअर लेयर्स एंड देन इन होल ऑफ द डैम. The earthquake waves can travel in any direction. They are, however, resolved in vertical and horizontal directions. The next is uplift water pressure. The uplift pressure is the upward pressure of water at the base of the dam. It also exists within any cracks in the dam. तो क्रैक्स अगर डैम में आए तो वो भी अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करता है. और जो वाटर होता है रिवर वाटर वो भी कैसे अंडरग्राउंड वाटर भी रहेगा वो भी अपलिफ्ट प्रेशर क्रिएट करता है. तो डैम को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है अपलिफ्ट वाटर प्रेशर. द वाटर स्टोर्ड ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम हैज़ ए टेंडेंसी टू सीप थ्रू द सॉइल बिलो फाउंडेशन. तो सॉइल के अंदर सीप करता है जो वाटर अपस्ट्रीम में सेव है और वो वाटर फिर डैम में डैम को ओवरटर्न करने की कोशिश करता है. देन वाइल सीपिंग द वाटर एक्सर्ट्स ए अपलिफ्ट फोर्स ऑन द डैम base of the dam depending upon the head of the water. The uplift pressure reduces the self weight of the dam. It reduces the uplift pressure. Drainage galleries are provided on the base of the dam. तो अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ड्रेनेज गैलरीज प्रोवाइड की जाती है क्योंकि क्या करता है ये अपलिफ्ट प्रेशर जो है वो डैम का वेट भी रिड्यूस करता है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपलिफ्ट प्रेशर एट द फेस ऑफ द गैलरी इज टेकन एज इक्वल टू hydrostatic pressure at the toe plus 1/3 the difference of the hydrostatic pressure at the heel and the toe. तो ये कंडीशन हमको डेवलप करनी पड़ती है बाय गैलरी कंस्ट्रक्ट करके हम अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं. तो अपलिफ्ट प्रेशर एट हील A इज इक्वल टू W इंटू H. अपलिफ्ट प्रेशर एट टो F इज इक्वल टू W इंटू H डैश. अपलिफ्ट प्रेशर एट गैलरी पॉइंट G इज इक्वल टू W H dash plus 1/3 of H minus H dash. So in this way uplift water pressure can be reduced.
The next force is ice pressure. This pressure is considered only when dams are located either at very high altitude or in very cold regions. So in very cold conditions the reservoir get covered with layer of ice. तो रिजर्वायर जो है आइस के लेयर से कवर हो जाएगा. कोल्ड रीजन में होता है जनरली आइस प्रेशर. नॉर्मल कंडीशन में आइस प्रेशर एक्सर्ट नहीं होता है. So when this layer is subjected to expansion and contraction due to variation in temperature, a force is developed which acts on the dam at level of water in the reservoir. तो एक फोर्स डेवलप होता है उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से. तो एक डेवलप होता है फोर्स जो डैम के ऊपर एक्ट करता है. This force acts linearly along the length of the dam at the reservoir level. Then the average magnitude of this force may be taken as 5 kg per centimeter square of the contact area of ice with upstream face of the dam. तो मैग्नीट्यूड जो होता है इस फोर्स का इज टेकन एज 5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया और वो आइस ऑफ द आइस लेयर विथ अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम. द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइस इज अबाउट 5 times दैट ऑफ कॉन्क्रीट. तो थर्मल एक्सपेंशन आइस का 5 times ज़्यादा होता है कॉन्क्रीट के, इसलिए ये आइस प्रेशर जो है वो डैम पे एक्ट करता है. इट इज़ ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड. देन विंड प्रेशर. The top exposed portion on the dam is small and hence the wind pressure on this portion of the dam is negligible. तो टॉप एक्सपोज पोर्शन जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए जो विंड प्रेशर जो होता है उस पोर्शन पे जो एक्ट करता है विंड प्रेशर टॉप के पोर्शन पे वो बहुत छोटा होने की वजह से जो विंड प्रेशर एक्ट करता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है. बट स्टिल एन अलाउंस शुड बी मेड फॉर द विंड प्रेशर एट द रेट ऑफ 150 kg per meter square for the exposed surface area of the upstream and downstream forces faces. तो कहीं कहीं पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको कंसीडर करना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर रेट में, ताकि एक्सपोज सरफेस पे विंड का जो प्रेशर आएगा वो डैम की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे. देन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम. तो ग्रेविटी डैम को क्यों डिज़ाइन किया जाता है? क्योंकि उसके ऊपर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि वो सारे फोर्सेस को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है. जैसे हमने अभी देखे सारे फोर्सेस, वाटर प्रेशर, विंड प्रेशर, वेव प्रेशर, आइस प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर और प्रेशर बाय इट्स सेल्फ वेट. तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये फोर्सेस जो एक्ट करते हैं डैम पे, इनको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी ग्रेविटी डैम पे है. लेकिन ग्रेविटी डैम जो है ये कंस्ट्रक्टेड है मशीनरी और कंक्रीट में, और इसीलिए वो बहुत ही स्टेबल और लाइफ लॉन्ग मटेरियल्स है, इसलिए मोस्टली प्रिफर्ड डैम जो होता है वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम होता है. और एडवांटेज और एक ये भी है कि ग्रेविटी डैम का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट ड्यूरेबल है और सॉलिड मटेरियल से बनता है, और इसका मेंटेनेंस भी वेरी लेस है एज कम्पेयर टू अर्दन डैम. देन कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम कौन कौन से हैं? ओवरटर्निंग, देन स्लाइडिंग, देन कॉम्प्रेशन एंड देन टेंशन. तो ओवरटर्निंग क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस सच एज वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटी डैम कॉजिंग ओवरटर्निंग. तो टू रेजिस्ट दिस रेजिस्टिंग मोमेंट्स आर जनरेटेड बाय द सेल्फ वेट ऑफ द डैम. तो ओवरटर्निंग से को अवॉइड करने के लिए सेल्फ वेट के थ्रू रेजिस्टिंग मोमेंट्स जनरेट किए जाते हैं. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग इज गिवन बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ स्टेबिलाइजिंग फोर्सेस अपॉन मोमेंट्स ऑफ ओवरटर्निंग फोर्सेस. तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जनरेट करता है. सो दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस और ये डेवलप फ्रिक्शन. सो दिस फैक्टर ऑफ दिस विल गिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी, moment of stabilizing forces upon moment of overturning forces. The next is sliding shear failure of gravity dam. So when the net horizontal forces acts on gravity dam at the base exceeds the frictional resistance, the failure occurs is known as sliding failure of gravity dam. The factor of safety against sliding is FOS is equal to mu into summation of V अपॉन समेशन ऑफ H. तो समेशन V मतलब होता है सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम, और समेशन H होता है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम.
तो म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, तो दिस इज स्लाइडिंग। देन नेक्स्ट है कंप्रेशन बाय क्रशिंग ऑफ ग्रेविटी डैम। तो ग्रेविटी डैम में फेल बाय द फेलियर ऑफ इट्स मटेरियल, द compressive stresses produced may exceed the allowable stresses and the dam materials may get crushed. The next is tension by development of tensile forces which results in the crack in the gravity dam. So masonry and concrete are weak in tension. So masonry and concrete dams are usually designed in such a way that no tension is developed here. तो हमको पता ही है कि मेसनरी और कंक्रीट जो है वो वीक है टेंशन में, इसलिए हमको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्ट्रक्चर कि देयर इज़ नो टेंशन डेवलप एनीवेयर. So if these dams are subjected to tensile stress, material may develop tension cracks. Thus the dam loses contact with the bottom foundation due to this cracks and become ineffective and fails. इसलिए जब भी टेंसाइल फोर्सेस डिज़ाइन किया जाता है ये डैम मेसनरी और कंक्रीट से, तो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि टेंशन डेवलप ही ना हो, क्योंकि अगर टेंशन डेवलप हो गया तो क्या होगा, मटेरियल जो टेंशन डेवलप होगा उससे क्रैक हो जाएगा और उसका जो सेल्फ वेट है वो इफेक्टिव होकर डैम फेल हो जाएगा. देन फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम समरी में हमने आज पढ़ा. देन कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ग्रेविटी डैम. Then assignment question. Describe any two forces acting on earthen dam with labeled sketch and state the causes of failure of gravity dam. So this was, then enlist the forces acting on earthen dam. Then